یہ کتاب دا آرٹ آف ڈیلنگ وتھ پیپل ایک ایسی آئینے کی مانند ہے جو ہمیں ہماری روزمرہ کی تعلقات کی اصل تصویر دکھاتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمارا احترام کریں اور ہماری بات سنیں، بٹ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی فطرت، ان کی ضروریات اور ان کے دل جیتنے کا فن سیکھ لیں۔ مصنف لیس گبلن سادگی مگر گہرائی کے ساتھ یہ راز کھولتے ہیں کہ کامیاب تعلقات کا دارمدار دولت یا عہدے پر نہیں بلکہ لوگوں کو اہم اور قابل قدر محسوس کرانے کی صلاحیت پر ہے۔ کتاب کا مرکزی پیغام ایک جملے میں یوں سمٹ آتا ہے: اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں تو انہیں پہلے ویسا ہی سلوک دیجیے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف تعلقات کو بہتر بناتی ہے بلکہ آپ کو ایک ایسا شخص بنا دیتی ہے جس کی موجودگی میں لوگ خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ چیپٹر 1: ہر انسان کو اہمیت چاہیے۔ انسانی فطرت کی گہری سچائی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ انسانی رویوں کے بارے میں صرف ایک ہی اصول یاد رکھ لیں تو وہ یہ ہے: The deepest urge in human nature is the desire to be important۔ انسانی فطرت کی سب سے گہری خواہش یہ ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہماری قدر ہو، لوگ ہمیں سنیں، ہمارے رائے کو اہمیت دیں اور ہمیں تسلیم کریں۔ یہ خواہش کسی ایک عمر یا طبقے تک محدود نہیں، یہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کا حصہ رہتی ہے۔ جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ اس کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیتے ہیں۔ انسان لاشعوری طور پر اس شخص کے قریب رہنا چاہتا ہے جو اس کی قدر پہچانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لیڈرز، کامیاب بزنس مین اور پسندیدہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو VIP محسوس کرواتے ہیں، چاہے وہ عام سا ملازم ہو یا بڑا عہدیدار۔ تعریف کریں، ریکگنیشن دیں۔ کسی کی کامیابی یا خوبی کا اعتراف کرنا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا کرتا ہے۔ مثلاً آپ نے آج کا پریزنٹیشن کمال کا تیار کیا، آپ کے خیال نے اس میٹنگ کو کامیاب کیا۔ مصنف کا اصول ہے: پریز ان پبلک اینڈ کریکٹ ان پرائیویٹ۔ تعریف سب کے سامنے کریں، اصلاح تنہائی میں کریں۔ پرسنل اٹینشن۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو مکمل توجہ دیں، آنکھوں میں دیکھیں، درمیان میں موبائل یا دوسری چیزوں میں نہ الجھیں۔ یہ چھوٹا سا عمل انسان کو محسوس کرواتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ Giving someone your attention is one of the greatest compliments you can give۔ کسی کو اپنی توجہ دینا سب سے بڑی تعریفوں میں سے ایک ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ Using their name۔ انسان کو اپنے نام کی آواز سب سے میٹھی لگتی ہے۔ گفتگو میں نام لینا اس شخص کو احساس دلاتا ہے کہ آپ اسے یاد رکھتے ہیں اور اس کی شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ مثلاً احمد، آپ کی یہ بات واقعی قابل تعریف ہے۔ کہنا صرف یہ بات اچھی ہے کہنے سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ Valuing their opinion۔ جب آپ کسی کی رائے سنتے ہیں اور اسے اہمیت دیتے ہیں تو وہ خود کو قیمتی محسوس کرتا ہے، چاہے آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ سننا اور احترام دینا تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، تعلقات میں سرد مہری آتی ہے، وہ آپ کی بات یا موجودگی کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ Ignore a person's importance and you push him away۔ Recognize it and you pull him towards you۔ کسی کی اہمیت کو نظر انداز کریں تو آپ اسے دور دھکیلتے ہیں اور اسے پہچانیں تو آپ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دن میں کم از کم ایک بار کسی کو مخلصانہ تعریف دیں۔ گفتگو میں لوگوں کے نام لیں، جب کوئی بات کرے تو پوری توجہ دیں، دوسروں کی کامیابی پر دل سے خوشی ظاہر کریں۔ چھوٹے احسان اور یاد رکھنے والے جملے استعمال کریں، جیسے آپ کی بات یاد آئی، آپ کا ذکر ہوا۔ اختلاف میں بھی احترام قائم کریں۔ جب آپ دوسروں کو اہم محسوس کرواتے ہیں تو نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ آپ خود بھی ایک زیادہ پسندیدہ اور مؤثر انسان بن جاتے ہیں۔ یہ تعلقات کا پہلا اور سب سے مضبوط اصول ہے۔ چیپٹر 2: ایگو کو سمجھنا اور مضبوط کرنا۔ ایگو۔ مصنف لیس گبلن کے مطابق خود ہی وہ احساس قدر ہے جو ہر انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ اس کا اندرونی پیمانہ ہے جس سے وہ خود کو ماپتا ہے۔ یہ احساس اس وقت بڑھتا ہے جب لوگ ہمیں عزت، تعریف اور اعتماد دیتے ہیں، اور یہ کمزور پڑتا ہے جب ہمیں تنقید، طنز یا نظر انداز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ When you strengthen a man's ego, you strengthen the man۔ جب آپ کسی انسان کی خودی کو مضبوط کرتے ہیں تو آپ اس انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسٹرانگ ایگو والا انسان پر اعتماد، پرسکون اور مثبت رویہ رکھتا ہے۔ کمزور خودی والا انسان حساس، دفاعی اور بعض اوقات جارحانہ ہو جاتا ہے۔ مصنف سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ خوشگوار تعلق رکھیں تو ان کی خودی کو سہارا دیں، نہ کہ گرا دیں۔
तारीफ़ करें और हौसला अफजाई करें। जब आप किसी की छोटी या बड़ी कामयाबी की तारीफ़ करते हैं तो आप उसके अंदर यकीन पैदा करते हैं कि वो कीमती और काबिल है। मसलन आपका तजज़िया बहुत गहरा है, ये काम आपके हाथ में हो तो सबसे आसान हो जाता है। रिकॉग्निशन इज़ द ईजीएस्ट वे टू बिल्ड अ मैन्स ईगो। किसी की खुदी को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका उसकी कदर पहचानना है। जब आप किसी को दूसरों के सामने सराहते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मसनफ़ का असूल है, प्रेज़ इन पब्लिक एंड करेक्ट इन प्राइवेट। तारीफ़ सबके सामने करें, इस्लाह तनाई में करें। तनकीद में नरमी। बराह रास्त और सख्त तनकीद अक्सर इंसान की खुदी पर चोट करती है। तनकीद करने से पहले तारीफ़ करें। मसला को शख्सियत से अलग करें, यानी गलती कहें ना कि आप गलत हैं। एतमाद देना। किसी को ये कहना कि मुझे तुम पर भरोसा है उसकी खुदी के लिए एक ताकतवर ग़िज़ा है। मिसाल, ये प्रोजेक्ट आपके सुपुर्द कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहतरीन कर सकते हैं। खुदी को नुकसान पहुँचाने वाले रवैये, सबके सामने किसी की गलती निकालना, तंज़िया जुमले, मजाक उड़ाना, उसकी राय को मुसलसल रद्द करना, गुफ्तगू के दौरान नज़रअंदाज करना या तवज्जो ना देना। मसनफ़ खबरदार करते हैं, एवरी टाइम यू बी लिटल अ मैन यू श्रिंक हिम एंड यू श्रिंक हिम योर इन्फ्लुएंस ओवर हिम। जब भी आप किसी को छोटा करते हैं आप उसे कमज़ोर करते हैं और उस पर अपना असर भी कम करते हैं। दिन में कम से कम एक बार किसी की तारीफ़ करें। इख्तिलाफ में भी इज़्ज़त कायम रखें। गुफ्तगू में किसी की कामयाबी या खूबी को नुमाया करें। इस्लाह हमेशा अकेले में करें। किसी को इत्मीनान के साथ जिम्मेदारी दें। जब आप दूसरों को खुदी का सहारा देते हैं तो वो न सिर्फ आपकी इज़्ज़त करते हैं बल्कि आपके करीब रहना पसंद करते हैं। ताल्लुकात में ताकत जीतने में नहीं बल्कि दूसरों को इज़्ज़त देने में है। चैप्टर 3, रवैया और जिस्मानी ज़बान से दूसरों पर असर। रवैया एक आईना है। लेस किबलन के मुताबिक हम जैसे रवैये का इज़हार दूसरों के साथ करते हैं वही रवैया हमें वापस मिलता है। अगर आप खुश इखलाक, पुरएतमाद और मुसब्बत रवैया रखते हैं तो लोग भी आपसे वैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन अगर आप सर्द, चिड़चिड़े या लापरवाह हों तो दूसरों का रवैया भी मनफी हो जाएगा। पीपल एक्ट टूवर्ड्स यू द वे यू एक्ट टूवर्ड्स देम। लोग आपके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करते हैं जैसा आप उनके साथ इख्तियार करते हैं। आपके अल्फाज से ज़्यादा आपका चेहरा, आवाज़ का लहजा और जिस्मानी हरकत असर डालती हैं। एक मुस्कुराहट अक्सर वो दरवाजे खोल देती है जो सख्त अल्फाज बंद कर देती है। आंखों में देखकर बात करना इत्मीनान पैदा करता है। सीधा खड़ा होना या बैठना वक़ार और संजीदगी ज़ाहिर करता है। योर स्माइल इज़ योर ग्रेटेस्ट असेट इन डीलिंग विद द पीपल। लोगों से पेश आने में आपकी मुस्कुराहट आपका सबसे बड़ा सरमाया है। पहली मुलाकात चंद सेकंड्स में दूसरे के जहन में आपकी एक तस्वीर बना देती है। अगर आप गर्मजोशी, खुश इखलाकी और एतमाद के साथ पेश आएँ तो ये तस्वीर मुसब्बत होगी। अगर आप सर्द महरी गुरूर दिखाएंगे तो तस्वीर बदलना मुश्किल हो जाता है। मुलाकात के आगाज़ में मुस्कुराना, मजबूत हैंडशेक और नाम याद रखना। बोलते वक्त साफ और वाज़ेह लहजा रखें। ज़्यादा आहिस्ता या बहुत ऊंची आवाज़ से ना बोलें। जिस्मानी हरकत में झिझक या बेचैनी जाहिर ना करें। कॉन्फिडेंस इज़ द साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज़ लाउड। एतमाद खामोश होता है जबकि अदम तोफ़िज़ शोर मचाता है। अगर माहौल मनफी या तनाव वाला हो तो आपका रवैया पूरे माहौल का रुख बदल सकता है। मुसब्बत तबसर करना, हल्की सी मिजाज से बोझ कम करना, दूसरों की बात को तस्लीम करना। मसनफ़ कहते हैं, द क्विकेस्ट वे टू चेंज अनदर पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स यू इज़ टू चेंज योर ओन। किसी का आपकी तरफ रवैया बदलने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि आप अपना रवैया बदल दें। हर मुलाकात की शुरुआत मुस्कुराहट से करें। सीधे जिस्मानी पोजीशन रखें। हाथ मिलाते वक्त मजबूत और पुरएतमाद हैंडशेक करें। गुफ्तगू के दौरान आंखों में देखें। नरम और खुशगवार लहजा इस्तेमाल करें। रवैया और जिस्मानी ज़बान वो गैर लफ्ज़ी हथियार हैं जिनसे आप बगैर बोले भी दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। जब आप एतमाद और गर्मजोशी के साथ पेश आते हैं तो लोग आपके करीब आना पसंद करते हैं और आपका असर खुद ब खुद बढ़ जाता है। चैप्टर 4, फर्स्ट इम्प्रेशन। लेस किबलन कहते हैं, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इम्प्रेशन। पहला तासिर बनाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि पहली मुलाकात में आपके बारे में जो तस्वीर बन जाती है वो अक्सर देर तक जहन में रहती है, चाहे बाद में आप कितना ही बदल जाएं। पहला तासिर कई चीज़ों से बनता है। आपका रवैया, दोस्ताना या सख्त, लिबास और ज़ाहिरी हालत, साफ सलीके या लापरवाह, जिस्मानी ज़बान, मुस्कुराहट, खड़े होने का अंदाज, हाथ मिलाने का तरीका, आवाज़ का लहजा, नरम या तल्ख।
मुस्कुराहट सबसे ताकतवर हथियार है। एक मुस्कुराहट फौरन दिल जीत लेती है। योर स्माइल स्पीक्स बिफोर यू डू। आपकी मुस्कुराहट आपके बोलने से पहले बात कर देती है। मुस्कुराहट एतमाद और खुश इखलाकी का सिग्नल है। लिबास और सफाई पहले तासुर में बहुत किरदार अदा करते हैं। कपड़े महंगे ना भी हों, साफ और सलीके से हों। खुशबू या ड्यू इस्तेमाल करें लेकिन हल्की। मसनफ लिखते हैं, पीपल जज योर माइंड बाय अपीयरेंस ऑफ योर बॉडी। लोग आपके जहन को आपकी जिस्मानी हलिये से परखते हैं। पहली मुलाकात में शिकायत या मनफी बात से शुरू ना करें, तारीफ करें। कोई हल्की फुल्की खुशगवार बात करें। फ़र्ज़ करें आप किसी के इंटरव्यू पर जाते हैं। आप साफ़ सुथरे कपड़ों में मुस्कुराते चेहरे के साथ दरवाज़ा खोलते वक्त हल्की दस्तक देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले से मजबूत हैंडशेक और आंखों में देखकर सलाम करते हैं। पहले ही बात में शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको मौका दिया गया। ये सब मिलकर एक शानदार पहला तासुर छोड़ते हैं। गलतियाँ जो पहले तासुर को ख़राब करती हैं: बगैर मुस्कुराहट के खुश्क रवैया, कपड़ों में लापरवाही, नज़रें झुकाना या बहुत ज़्यादा घूरना, सलाम या तारुफ में बेदिली, शुरू में शिकायत या मनफी जुमला कहना। पहला तासुर आपकी तल्लुकात का इब्तदाई दरवाज़ा है। अगर आप ये दरवाज़ा मुस्कुराहट, एतमाद और मुसब्बत रवैये के साथ खोलते हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता है। द पावर ऑफ लिसनिंग। लेस किबलन कहते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को ये परवाह नहीं आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें ये ना लगे आप उनकी परवाह करते हैं। और परवाह जाहिर करने का सबसे आसान और मौसर तरीका है दिल से सुनना। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय जवाब देने के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन हकीकी सुनना उस वक्त होता है जब आप अपनी तवज्जो 100% बोलने वाले पर रखते हैं। आप उसे रोकने की बजाय पूरी बात करने देते हैं। आप उसके एहसासात को समझने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ अल्फाज को। जब भी आप किसी को तवज्जो से सुनते हैं, वो महसूस करता है कि उसकी राय अहम है और आप पर इत्मीनान करने लगता है। अक्सर गलत फहमियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम पूरी बात नहीं सुनते। सुनने से आपको वो मालूमात मिलती है जो आप बोलते वक्त खो सकते हैं। अच्छा सुनने का तरीका: आंखों में देखें, यह जाहिर करता है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं। दरमियान में मत टोकें। मसनफ लिखते हैं, इंटरप्टिंग इज टेलिंग द अदर पर्सन व्हाट आई हैव टू से इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर सेइंग। किसी की बात काटना ये कहने के मुतारदफ है कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज़्यादा अहम है। जिस्मानी ज़बान का इस्तेमाल करें। सर हिलाना, हल्की मुस्कुराहट और चेहरे के तासुरात ये जाहिर करते हैं कि आप बात समझ रहे हैं। वजाहत मांगे। अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल करें, क्या आप ज़रा मज़ीद वजाहत करेंगे? सुनी हुई बात को दोहराकर यकीन दिलाएं। मसलन तो आपका मतलब है कि आपको काम का दबाव ज़्यादा है। एक बिजनेसमैन हमेशा मीटिंग में सबकी बात काट देता था। नतीजा ये हुआ कि उसकी टीम खुलकर बात नहीं करती थी और आइडियाज़ कम आते थे। जब उसने ये आदत बदली और सबको पहले पूरी बात करने दी तो टीम की कारकर्दगी और एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ। गलतियाँ जो सुनने में रुकावट बनती है: मोबाइल या दूसरी डिस्ट्रक्शन देखना, बोलने वाले को जज करना या जल्द नतीजा निकालना, बार बार अपनी मिसाल देना, जज्बात में आकर फ़ौरन रद्द अमल देना। सुनना सिर्फ एक महारत नहीं बल्कि एक आर्ट है। जो लोग सुनने में माहिर होते हैं वो ताल्लुकात में मजबूत, काम में कामयाब और ज़िंदगी में ज़्यादा पुरसुकून रहते हैं। आखिर में लेस किबलन का असल पैगाम एक ही जुमले में सिमट आता है: इफ़ यू ट्रीट पीपल राइट दे विल ट्रीट यू राइट। अगर आप लोगों के साथ सही बर्ताव करें तो वो भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। ये किताब हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ डिग्री, पैसा या महारत से नहीं मिलती, बल्कि इंसानों के दिल जीतने की सलाहियत से मिलती है। जब आप किसी को तवज्जो देते हैं वो आपको इज्जत देता है। जब आप तारीफ़ करते हैं वो आपसे जुड़ जाता है। जब आप समझने की कोशिश करते हैं वो आप पर एतमाद रखता है। दुनिया में हर शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसे अहमियत दी जाए और समझा जाए। अगर आप ये ख्वाहिश पूरी कर दें तो आप ना सिर्फ बेहतरीन ताल्लुकात बना सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को कामयाबी और खुशियों से भर सकते हैं। द वे यू मेक फील पीपल विल बी रिमेंबर फॉर लॉन्गर देन व्हाट यू से और डू। आप लोगों को कैसा महसूस करवाते हैं, ये बात आपके अल्फाज या अमल से कहीं ज़्यादा देर तक याद रहती है। ज़िंदगी को आसान बनाने का राज यही है कि दूसरों के साथ वैसा सलूक करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जब आप दिल से इंसानों को अहमियत देंगे तो कामयाबी और मोहब्बत खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी।